Good morning, students. In the last class of the business studies class 11th, what we have studied? We have studied the different kind of services to the manufacturer. The services are the first one is facilitate large scale of production and the economies of scale, helps in marketing function, expert advice, storage, financial assistance, bearing risk, facilitate production continuity. Okay, and the services which is provided by the wholesaler to the retailers are the availability of the goods, grant of credit, risk sharing, specialized knowledge, marketing supports, as well as marketing systems, economies of the scale. Okay, so in today's class we will discuss the second one, that is retail trade. Okay, let's start. Retail trade is the last link in the distribution chain. Retail trade refers to the sale of goods in small lots to the final consumers. A retailer buys goods from a wholesaler and sells them to the consumer. So he acts as a link between the wholesaler and the ultimate consumer. Retailing need not necessarily be carried on in a shop or the store. Retailing includes selling goods door to door, on television, on telephone, on internet, etc. Okay, so retail trade is the last link in the distribution channel. Okay, when we talk about the distribution, so retailer is the last chain because distribution is started with the wholesaler. First of all, there is manufacturer and then wholesaler and then retailer. So retailer is the last link because after that retailer provide all the goods to the consumer. Okay, so consumer is the last one who purchase the commodity. That's why retailer क्या है, ये लास्ट चेन में डिस्ट्रीब्यूशन, यही डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट करेगा क्योंकि आफ्टर डैट कंज्यूमर क्या करेगा, कमोडिटी को परचेज करेगा, कंज्यूम करेगा. सो रिटेल ट्रेड रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू द फाइनल कंज्यूमर. ओके, रिटेल ट्रेड क्या करता है, सेल ऑफ गुड्स इन द स्मॉल लॉट्स. ठीक है, गुड्स को सेल करता है स्मॉल लॉट्स में, मीन्स स्मॉल क्वांटिटी में, टू द फाइनल कंज्यूमर. जो भी फाइनल कंज्यूमर्स हैं उनको क्या करेगा, गुड्स को सोल्ड आउट करेगा. A retailer buy goods from the wholesaler and sells them to the consumer. रिटेलर क्या करेगा, गुड्स को बाई करेगा फ्रॉम दी होलसेलर, होलसेलर से गुड्स को बाई करेगा एंड देन सेल्स देम टू दी कंज्यूमर, और उनको क्या करेगा, सेल कर देगा कंज्यूमर को. ओके, रिटेलर. ओके, रिटेलर गुड्स को परचेज कहाँ से करेगा, होलसेलर से. ओके, a wholesaler sold all the goods to the retailer. So retailer purchase किससे करेगा, wholesaler से, and then retailer sold out it to the consumer. Okay, so sells a retailer buy goods from the consumer, or a retailer buy goods from the wholesaler and sells them to the consumer, और उनको किसको sold out कर देगा, कंज्यूमर को. सो ही एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन दी होलसेलर एंड दी अल्टीमेट कंज्यूमर. तो रिटेलर क्या हो गया, एक लिंक हो गया किसके बीच का, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में. इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ये रिटेलर लिंक हो गया. ओके, रिटेलिंग नीड नॉट नेसेसरली बी कैरीड ऑन अ शॉप और अ स्टोर. रिटेलिंग का मतलब ये नहीं है कि बस वो ये किसके थ्रू होगी, कोई शॉप और स्टोर में ही होगा, कि किसी की पर्टिकुलर शॉप है या किसी का कोई स्टोर है उसी पे ही हम रिटेलिंग कर सकते हैं. मींस जो रिटेलर है वो रिटेलिंग कर सकता है. रिटेलिंग इंक्लूड्स सेलिंग गुड्स डोर टू डोर. रिटेलिंग कैसे भी हो सकती है कि कोई भी गुड्स है उसको डोर टू डोर सोल्ड आउट करना. मीन्स जो डिफरेंट पीपल हैं, जो पर्सन हैं, उनके घर घर जाके आप क्या कर सकते हो,
रिटेलिंग कर सकते हो। ऑन टेलीविज़न पे, जो टेलीविज़न में एड्स आते रहते हैं कि इतने देर में आप फ़ोन करके क्या करिए, ये सारे गुड्स को मंगाइए इतने कॉस्ट का। तो ये सारे क्या है, ऑन टेलीफोन पे जो फ़ोन करके कोई भी ऑर्डर लेते हैं, तो ये सारे क्या है, रिटेलिंग। ऑन इंटरनेट पे भी जो सारे प्रोवाइड्स करते हैं, जितने सारे ऐप्स हैं जो डिफरेंट काइंड के, वो सारी ये जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मिंत्रा हो गया, आपका फ्लिपकार्ट, दीज ऑल आर दी ऑल्सो दी डूइंग द रिटेलिंग। ओके, रिटेलिंग ये भी कर रहे हैं ना, क्योंकि डायरेक्टली वो कस्टमर को और कंज्यूमर को ही गुड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो इट ऑल्सो इंक्लूड इन द रिटेलिंग। रिटेलिंग का मतलब बस यही नहीं है कि कोई एक शॉप ओपन करके बैठ गया है, वहाँ से लोग गुड्स को परचेस कर रहे हैं कंज्यूमर, सो वो क्या है आपका रिटेलिंग नहीं। रिटेलिंग क्या हो सकता है, टेलीविज़न पे भी हो सकता है, टेलीफोन पे भी हो सकता है, डोर टू डोर हो सकता है, एज वेल एज इंटरनेट पे भी हो सकता है। ओके, सो अ रिटेलर मे बी डिफाइंड एज अ डीलर इन गुड्स एंड सर्विसेज who purchases from a manufacturer or wholesaler and sells to the ultimate consumer. The person who carries on retail trade is called retailer. Okay, a retailer may be defined as the dealer in goods and services. ठीक है, रिटेलर कौन हो सकता है, कोई भी डीलर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को जो जिसके थ्रू डील करता है उसको हम लोग डीलर बोलते हैं। कोई भी पर्सन जो ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, डीलिंग कर रहा है किसी के साथ गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको हम लोग डीलर बोलते हैं। तो रिटेलर क्या होते हैं, दे आर डिफाइंड एज द डीलर इन गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स को डील करते हैं, एंड हु परचेजेस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और द होलसेलर। वो लोग क्या करते हैं रिटेलर, वो गुड्स को क्या करते हैं, या तो मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं और फ्रॉम दी होलसेलर, उनसे क्या करते हैं, वो गुड्स को परचेज करते हैं, एंड अल्टीमेटली सेल्स टू दी कंज्यूमर। और वो सेल किसको कर देते हैं, अल्टीमेट जो कंज्यूमर है उनको क्या करते हैं, वो गुड्स को सोल्ड आउट करते हैं। द पर्सन परचेज किसी और से करेंगे, परचेज वो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर से करेंगे, और सोल्ड किसको कर देंगे, अल्टीमेट कंज्यूमर को। द पर्सन हु कैरीज ऑन रिटेल ट्रेड इज कॉल्ड रिटेलर। ठीक है, वो पर्सन जो ये सारी एक्टिविटीज़ करता है, ये सारे कैरीड ऑन द रिटेल ट्रेड, जो रिटेल ट्रेड को करता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेलर। ठीक है, ये जो सारी गुड्स की डीलिंग करता है, गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली कस्टमर और कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेलर। ओके, नाउ देयर आर सम फीचर्स ऑफ द रिटेल ट्रेड। फर्स्ट वन इज रिटेलर इज़ द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ओके, जो रिटेलर होता है, रिटेलर इज़ द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल है उसमें रिटेलर क्या होता है, वो लास्ट होता है। रिटेलर सेल्स द गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। रिटेलर जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं, जो भी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो कस्टमर को और कंज्यूमर से डायरेक्टली प्रोवाइड करता है। उसका डायरेक्ट लिंक होता है किसके साथ, कंज्यूमर के साथ। रिटेलर डील्स विथ अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। रिटेलर क्या है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ भी डील करता है। मीन्स अगर एक शॉप है, जैसे मल्टी स्टोर हो गई, या आपकी कोई स्टेशनरी की शॉप हो गई, एज वेल एज कम्युनिकेशन की शॉप हो गई, मेडिसिन्स की शॉप हो गई, तो वो उस पर क्या है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रखता है। जो भी स्टेशनरी या ग्रॉसरी की होती है उसमें क्या है, वो हर एक टाइप के प्रोडक्ट्स रखता है ना। तो रिटेलर डील विद दी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो। रिटेलर बाय एंड सेल अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ गुड्स। जो रिटेलर होता है वो क्या करता है, स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ गुड्स को परचेज करता है, बाई करता है फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर और दी होलसेलर, एंड सोल्ड इट टू दी कंज्यूमर इन द स्मॉल क्वांटिटी में ही वो डील करता है। ओके, रिटेलर मेंटेन्स पर्सनल रिलेशन विद द कस्टमर। ओके, रिटेलर क्या करता है, एक अपना जो उसका पर्सनल रिलेशन है वो भी कस्टमर के साथ मेंटेन करता है। रिटेलर में कॉन्टैक्ट दी कस्टमर ऑन टेलीफोन, इंटरनेट, टीवी और थ्रू हिज रिटेल शोरूम। रिटेलर क्या करता है, कॉन्टैक्ट भी कर सकता है कस्टमर को, टेलीफोन पे भी फ़ोन करके, इंटरनेट के थ्रू भी दे कैन कॉन्टैक्ट, टीवी के थ्रू दे कैन कॉन्टैक्ट, और थ्रू दी रिटेल शोरूम। रिटेल जो उनके शोरूम्स होते हैं डिफरेंट, जो भी शोरूम्स में जहाँ पे हम लोग जाते हैं, मॉल्स हो गए या कोई अलग अलग जो शोरूम्स होते हैं, उसके भी थ्रू क्या करता है रिटेलर, डायरेक्टली कस्टमर से कॉन्टैक्ट करता है।
रिटेलर एक्ट्स एज अ मिडिल मैन बिटवीन द होलसेलर एंड कस्टमर। ओके, रिटेलर कैसा है, एक मिडिल मैन की तरह बिहेव करता है और एक्ट करता है, बिकॉज यहाँ पे इधर कौन है, होलसेलर है, और इधर कौन है, कस्टमर है। तो रिटेलर क्या हो गया, मिडिल मैन की तरह बिहेव करता है और एक्ट करता है। नेक्स्ट इज सर्विसेज ऑफ द रिटेलर्स। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट सर्विसेज ऑफ द रिटेलर्स। रिटेलर की कैसी सर्विसेज होती हैं, तो रिटेलर प्रोवाइड दिस सर्विसेज टू दी बोथ कंज्यूमर एज वेल एज होलसेलर। दोनों को क्या करता है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कौन, रिटेलर। सो दे एक्ट एज रिटेलर प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट सर्विस टू द कंज्यूमर एंड द होलसेलर एज दे एक्ट एज मिडिल मैन बिटवीन देम। ओके, रिटेलर कैसे है, इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, किसको, कस्टमर को और होलसेलर को, दोनों को, एज दे एक्ट एज अ मिडिल मैन बिटवीन देम, क्योंकि वो क्या है, एक मिडिल मैन की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। ओके, सो सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर्स टू द कंज्यूमर्स। ओके, नाउ सर्विस retailer provide the following service to the consumers. First one is regular availability of products. A retailer makes available to the consumer all type of commodities. Consumer can conveniently buy the required product at one place. Consumer are assured of the continuous supply of goods as they need not to store goods in the large quantity. ओके, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो रिटेलर होता है वो क्या करता है, जितने भी गुड्स हैं उनकी रेगुलर ही अवेलेबिलिटी कराता है। ऐसा नहीं है कि वो अभी एक टाइम कराएगा फिर कुछ दिन के लिए वो रुक जाएगा, तो उसकी क्या है, वो रेगुलरली सारे गुड्स की वो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो अ रिटेलर मेक अवेलेबल टू दी कस्टमर ऑल टाइप ऑफ कॉमोडिटी। रिटेलर क्या करता है, हर एक टाइप के कॉमोडिटी को कस्टमर के लिए मेक अवेलेबल कराता है। कंज्यूमर कैन कन्वेंटली बाय द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट एट वन प्लेस। कन्वेंटली क्या होता है, कन्वीनियंटली के साथ मीन्स ईजिली कंज्यूमर क्या कर सकता है, सारे प्रोडक्ट को एक प्लेस पे ही वो परचेज कर सकता है। ओके, सो कंज्यूमर्स आर अश्योर्ड ऑफ द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। इससे कंज्यूमर क्या कर सकता है, अश्योर भी हो सकता है कि गुड्स की क्या है, कंटिन्यूसली सप्लाई होगी। इन दैट केस एज दे नीड नॉट स्टोर द गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी। इसके लिए कंज्यूमर को ये नहीं है कि वो लार्ज क्वांटिटी का क्या करे, गुड्स को एक साथ स्टोर कर ले। ठीक है, ये भी क्या कर सकता है, दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर्स टू द कंज्यूमर, दैट कि जो रिटेलर होता है वो अवेलेबिलिटी जो भी सारे गुड्स हैं उनकी रेगुलरली वो अवेलेबिलिटी कराता है, और कंज्यूमर क्या कर सकते हैं, सारे जितने भी उसको प्रोडक्ट्स की नीड है वो वन प्लेस पे ही जाके, वन शॉप पे ही जाके वो क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कंज्यूमर आर एश्योर्ड ऑफ दी कंज्यूमर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंज्यूमर को ये भी अश्योर किया जाता है कि जो भी सप्लाई है गुड्स की वो कंटिन्यूअसली होती रहेगी। दे नीड नॉट स्टोर द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। उनको ये ज़रूरत नहीं है कि वो गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में एज अ स्टोर करके रख ले, क्योंकि रिटेलर उनको एक एश्योर करता है कि गुड्स की सप्लाई कंटिन्यूअसली होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ वाइड सेलेक्शन। अ रिटेलर ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट ओनली अंडर वन रूफ। He also provide different brands of the same product so that consumer can buy the product of their choice. Okay, wide selection as आपको पता होगा, जैसे आप बिग बाज़ार जाओ या डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ऐसे शोरूम्स होते हैं वहाँ पे जाओगे तो आपको कोई भी जो प्रोडक्ट है, जैसे आपको कोई जीन्स ख़रीदना है या आपको कोई कुर्ती ख़रीदनी है, तो उसमें क्या है, आपको सारे ऑप्शंस दिखते हैं। ये नहीं कि वो बस एक ब्रांड प्रोवाइड करेगा। अब वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, जैसे डिफरेंट ब्रांड हो गया आपका कि वो लिवाइस भी प्रोवाइड करेगा, मैदाम भी प्रोवाइड करेगा, और भी जो भी वो हैं डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनकी क्या है, जैसे डब्लू की भी कुर्ती हो सकती है, रंगमंच की भी कुर्ती हो सकती है। तो डिफरेंट क्या है, वो एक ही प्रोडक्ट का डिफरेंट ब्रांड भी प्रोवाइड करता है
कि कस्टमर क्या करेगा अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग और अपनी कन्वीनियंटली के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो गुड्स को क्या कर सकता है, परचेज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको एक प्रोडक्ट का क्या है बस एक ही टाइप के ब्रांड मिले कि वो और ब्रांड पे शिफ्ट ना हो सके। मे बी कोई पर्सन और आए, इंडिविजुअल आए, उसको क्या है कि वो सेम प्रोडक्ट को हर टाइम लेता है, अभी क्या है उसको डिफरेंट ब्रांड पे जाना है। तो एक रिटेलर क्या करता है, वाइड सिलेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी कंज्यूमर को, कि कंज्यूमर को एक ही प्लेस पे क्या होगा, वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सारे प्रोडक्ट को ले सकता है। ओके, सो अ रिटेलर ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ओनली अंडर वन रूफ। ठीक है, एक रूफ के नीचे, एक छत के नीचे ये बात होती है कि रिटेलर क्या करता है, वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप का जो प्रोडक्ट के बहुत सारी वैरायटी प्रोवाइड करता है। ही ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, एक सेम प्रोडक्ट का अगर वो जीन्स ही ले रहा है या अगर वो शैम्पू ही दे रहा है, तो एक ही प्रोडक्ट के वो डिफरेंट ब्रांड को यूज़ करेगा, मतलब प्रोवाइड करेगा। अब आप कोई भी शॉप पे जाते हो, ऐसा तो नहीं है कि वो बस एक क्लिनिक प्लस ही रखा रहता है, वो हेड एंड शोल्डर, वाटिका, लॉरियल, सनसिल्क, हर एक टाइप का वो शैम्पू रखा रहता है। तो ये क्या है कि रिटेलर एक ही प्रोडक्ट का, सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट ब्रांड भी रखता है, सो दैट कंज्यूमर कैन बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर चॉइस। कंज्यूमर क्या करेंगे, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज न्यू प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन। अ रिटेलर्स असिस्ट consumer in selecting the goods. In many large retail showroom, salesmen are appointed who guide the customer in selection by explaining the features and the use of different products. Okay, the retailer also provide the information of the new products. ठीक है, कोई भी न्यू प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में या शॉप पे, तो क्या करते हैं रिटेलर, उनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये ऐसा है, इसकी प्राइस ऐसी है, इतना % ऑफ है, इसके ये फीचर्स हैं, आप ऐसे इस कंडीशन में भी पहन सकते हो या इस कंडीशन में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो, एज वेल एज ऐसा फैसिलिटीज़। तो सारी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर को प्रोवाइड करता है कौन, रिटेलर। तो रिटेलर असिस्ट कंज्यूमर इन सेलेक्टिंग द गुड्स। रिटेलर असिस्ट करता है कंज्यूमर को कि वो गुड्स को कोई भी सेलेक्ट करे। इन मैनी लार्ज रिटेल शोरूम, ठीक है, आप जैसे बिग बाज़ार जाओ या कंबल घर, ये वाराणसी की बात करें, तो इसमें क्या है, जो भी डिफरेंट मॉल्स में जाओ, तो रिटेल शोरूम में जाओ तो सेल्समैन होते हैं आपके साथ। आप देखे होंगे कि वो आप कुछ भी ड्रेस लेने जाते हो तो आपको पूछते हैं कि किस साइज़ का चाहिए, तो वो निकाल के आपको देंगे। तो ये सारी क्या है, सेल्समैन होते हैं जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर वो आपको ये भी बताते हैं कि सर या मैम आप उस ओर जाइए, यहाँ पे क्या है, इतने % ऑफ़ चल रहा है, 20% ऑफ़ है, फ्लैट 20% है या 20 ऑफ़ चल रहा है। तो ये सारी कौन इन्फॉर्मेशन देता है, रिटेल शॉप पे, रिटेल शोरूम में सेल्समैन अपॉइंट किए जाते हैं। तो सेल्समैन आर अपॉइंटेड हु गाइड द कस्टमर इन सेलेक्शन बाय एक्सप्लेनिंग द फीचर। जो सेल्समैन क्या होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, वो कस्टमर को गाइड करते हैं इन सेलेक्शन बाय एक्सप्लेनिंग द फीचर्स, की उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करके, एंड यूज़ ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और उसके जो प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी क्या बेसिक फीचर्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या करता है, सेल्समैन प्रोवाइड करता है। द वन हु आर रिसाइडिंग एट दी एनी रिटेल शोरूम, ठीक है, जो कोई भी रिटेल शोरूम में रहता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एज अ सेल्समैन वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज़ डेमोन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। Retailers demonstrate the working of products to satisfy the customer. Retailer also offer after sale services to the customer if needed in the case of consumer durable goods, durable products such as TV, washing machine, etc. Okay, retailer demonstrate the working of products to the satisfy the customer. रिटेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं वर्किंग ऑफ प्रोडक्ट की, वर्किंग जो भी प्रोडक्ट वो उन्होंने सोल्ड आउट किया है रिटेलर, वो क्या प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन मैनी रिटेल शोरूम
प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई दी कस्टमर, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। रिटेलर ऑल्सो ऑफर आफ्टर सेल सर्विसेज टू कस्टमर, रिटेलर क्या करते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। कि फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसमें क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग के बाद वो लोग आपको मेल करके या मैसेज करके आपसे पूछते हैं ना कि आपको ये प्रोडक्ट, डिड यू लाइक दिस प्रोडक्ट एंड हाउ मच यू गिव द पॉइंट। तो ये सारी फैसिलिटी क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज। एज वेल एज़ कभी भी हम लोग अपने घर में अगर टीवी इंस्टॉल किया या वॉशिंग मशीन इंस्टॉल किया, कोई भी नया ऐसे एप्लियंसेस यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, एलजी के थ्रू, सोनी के थ्रू क्या होते हैं, कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं जो पूछते हैं कि आपने जो भी ये सर्विसेज ली है हमारी ओर से वो सेटिस्फाइड आप हैं कि नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर विथ अस सो दैट वी कैन सॉर्ट आउट ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये सारी फैसिलिटीज़ क्या है, रिटेलर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है इफ़ नीडेड इन द केस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जैसे होते हैं टीवी, वॉशिंग मशीन, ऐसे गुड्स के लिए अगर कोई उसको आफ्टर सेल सर्विसेज चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या कहते हैं कि 1 ईयर की वारंटी है। अब इस पर जो भी कुछ अगर कुछ होता है, डिस्ट्रॉय होता है या अब काम नहीं करता है कोई भी मशीन्स, वो क्या करते हैं, फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर दी सम डेमोन्स्ट्रेशन एज वेल एज आफ्टर सेल सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज़ होम डिलीवरी। सम रिटेलर्स मेक अरेंजमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एट द कस्टमर डोर स्टेप विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। देखिए, कुछ ऐसे भी रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एट द कस्टमर डोर स्टेप, मीन्स वो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज किए वो कस्टमर के घर तक भी उसको गुड्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, कोई भी ग्रॉसरी के शॉप्स होते हैं, उनके साथ अगर कोई गुड पर्सनल कांटेक्ट है रिटेलर और कस्टमर का, तो वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारे जो प्रोडक्ट है वो कोई भी कंज्यूमर क्या करता है, फ़ोन कॉल पे कह देता है मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, कोई ये कमोडिटी चाहिए, वो लिस्ट उनको दे देता है। और वो क्या करता है, वो जो भी रिटेलर है अपने जहाँ भी कोई सेल्समैन होगा या उसका कोई वर्कर होगा, उनको भेज के क्या है, आपको होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है विदाउट चार्जिंग एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, बिना एक्स्ट्रा चार्ज के भी वो सारी फैसिलिटीज़ क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कन्वीनियंस इन बाइंग। Retail stores are located in the residential areas as well as in the main market. The customer can easily approach in the retail showroom for buying the goods. Okay. Retail stores are located in residential areas as well as in the main market. ठीक है, जो रिटेल स्टोर्स होते हैं, जो शॉप्स होती हैं, वो रेसिडेंशियल एरिया मीन्स जहाँ पे लोगों का घर है वहाँ पे होते हैं, एज वेल एज मेन मार्केट मीन जो पूरा एक मेन मार्केट होता है किसी भी सिटी का, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे ये रिटेल स्टोर्स होते हैं। द कस्टमर कैन ईज़िली अप्रोच अ रिटेल शोरूम फॉर बाइंग द गुड्स। जैसे कस्टमर क्या है, ईज़िली अप्रोच कर सके, वहाँ तक रीच आउट कर सके फॉर बाइंग दी गुड्स। ओके, तो उनके कन्वीनियंटली के लिए बाइंग के गुड्स के बेसिकली फॉर द कस्टमर वो क्या करते, कन्वीनियंस के लिए कस्टमर के वो मेन सिटी एज वेल एज रेसिडेंशियल एरियाज़ में होते हैं, सो दैट एनी कस्टमर कैन अप्रोच दैट शॉप और दैट रिटेल शॉप फॉर बाइंग द गुड्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ क्रेडिट फैसिलिटी। Many retailers offer credit facility to the customer. Short-term and small amount credit is offered by the retailer himself. For long-term and large amount credit, he makes arrangement with the finance company and banks on behalf of the customer. Okay. So many retailers offer credit facility to the customer. कि कोई भी बहुत सारे retailers जो होते हैं वो कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को क्रेडिट लेना है, फ़ंड लेना है, तो वो रिटेलर प्रोवाइड करते, जो शॉप्स होती हैं। शॉर्ट एंड स्मॉल अमाउंट क्रेडिट इज़ ऑफर्ड बाय द रिटेलर हिमसेल्फ। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए या स्मॉल अमाउंट जो होता है, अगर किसी भी कस्टमर को लेना है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी रिटेलर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। फॉर लॉन्ग टर्म एंड लार्ज अमाउंट क्रेडिट ही मेक्स अरेंजमेंट विद फाइनेंस कंपनी। ठीक है, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए या लार्ज अमाउंट के लिए और लार्ज अमाउंट फ़ंड चाहिए, तो रिटेलर क्या करता है, फाइनेंस कंपनीज़ जो हैं, जो फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, मनी प्रोवाइड करती हैं, एज वेल एज़ बैंक्स के थ्रू भी वो क्या करता है,
लोन को ले लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ में वो क्या करता है, फाइनेंस कंपनी और बैंक्स के थ्रू मनी का अरेंजमेंट भी कर लेता है, क्रेडिट को टेकन करता है। फिर आफ्टर दैट ही वो क्या करता है, उनको प्रोवाइड कर देता है। ही कैन प्रोवाइड टू दी credit to the any customer, the one who is needy of the money. Okay, so these all are the some services which is provided by the wholesaler to the customers. Now the next one is the services which is provided by the retailers to the wholesaler and the manufacturer. A retailer provide the following services to the wholesaler and the manufacturer. First one is helps in distribution of goods. So retailer relieve the wholesaler and manufacturer from the burden of collecting and supplying small orders to widely scattered customer. Retailer help in distribution of goods to distant part of the country. Okay, देखिए रिटेलर क्या करता है, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को इस बर्डन से भी सेव कर लेता है कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर क्या करे, डिफरेंट प्लेसेस पे जाके गुड्स को सोल्ड आउट करे। रिटेलर उन्हीं से गुड्स को परचेज कर लेता है और गुड्स को डिस्टेंट पार्ट में भी, जो बहुत डिस्टेंट एरिया में भी, दूर में भी है, वहाँ पे भी क्या करता है, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल सेलिंग. बाय अंडरटेकिंग पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स द रिटेलर रिलीव producer or the wholesalers of this activity and help them greatly in proven of sale. Okay, इसमें क्या करता है, पर्सनल सेलिंग. बाय अंडरटेकिंग पर्सनल सेलिंग एफर्ट रिटेलर क्या करता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर और होलसेलर को इस एक्टिविटी का और हेल्प करता है कि प्रूवन ऑफ सेल, वो पर्सनल सेलिंग भी करता है, मींस जितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं अपनी पर्सनल सेलिंग का एफर्ट भी करता है एज वेल एज वो प्रोड्यूसर्स और होलसेलर को इन सारी एक्टिविटी से रिलीफ भी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट वन इज़ इनेबलिंग द लार्ज स्केल प्रोडक्शन. द प्रेजेंस ऑफ रिटेलर मेक मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर फ्री फ्रॉम द ट्रबल ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल सेल्स टू कस्टमर इन स्मॉल क्वान्टिटी. ओके, इन दिस केस क्या होता है कि जो रिटेलर है वो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को जो ट्रबल ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल सेल, जो इंडिविजुअल सेल का ट्रबल है, जो कस्टमर को इंडिविजुअली सेलिंग की जाती है स्मॉल क्वांटिटी में, उसके थ्रू भी क्या करता है रिटेलर, क्या करता है मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को फ्री करता है. मींस अब होलसेलर और रिटेलर को डायरेक्टली कस्टमर के साथ लिंक नहीं करना है, उनको गुड्स को सोल्ड आउट नहीं करना है. रिटेलर ही क्या करेगा, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेस करके डायरेक्टली वो कस्टमर से डील करेगा, इंडिविजुअल कस्टमर से डील करेगा और स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स को सोल्ड आउट करेगा. दिस इनेबल देम टू ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल. इसके थ्रू क्या कर सकता है कि इतना टाइम दे देगा वो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को कि वो लार्ज स्केल पे काम कर सके एंड फुली कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर एक्टिविटी. वो अपने एक्टिविटीज़ पे वो फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड करें, क्योंकि अगर वो होलसेलर और दी मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर से मिलने लगेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा. इससे वो क्या है, अपना जो उनका बिज़नेस है, जो अपना उनका प्रोडक्शन है, वो उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करके कस्टमर डीलिंग में ही वो बिज़ी हो जाएंगे. इसलिए क्या है कि रिटेलर उनकी हेल्प करता है कि वो इंडिविजुअल कस्टमर से मिलके स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड को सोल्ड आउट करता है. नेक्स्ट वन इज़ हेल्प इन प्रमोशन. रिटेलर पार्टिसिपेट इन प्रमोशनल एक्टिविटीज़ ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर इन वेरियस वे. ओके, रिटेलर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर. कैसे, क्योंकि वो क्या करता है, सेल और प्रोडक्ट के प्रमोट करता है कि कोई भी अगर कस्टमर आता है तो डिफरेंट गुड्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स को वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि इस प्रोडक्ट में क्या है, ये फ़ीचर्स है, इस प्रोडक्ट में ये फ़ीचर्स है. तो कस्टमर क्या होते हैं, उससे अट्रैक्टेड होते हैं कि अच्छा ये वाले फ़ीचर्स इसमें है, सो दैट कस्टमर विल बाय दैट प्रोडक्ट. तो इससे क्या हो रहा है, रिटेलर उस गुड्स का प्रमोशन भी कर रहा है, जो प्रमोशन फ्री कर रहा है मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को. अब मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को ये सारी प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं करना है, डायरेक्टली रिटेलर ही क्या कर रहा है, सारी फीचर्स किसी भी गुड्स की कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. रिटेलर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द होलसेलर और द मैन्युफैक्चरर रिगार्डिंग द टेस्ट, एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर. ओके, रिटेलर क्या करता है, कोई भी रिटेलर है,
उसके यहाँ कंज्यूमर्स आ रहे हैं, जो भी कस्टमर्स कंज्यूमर आ रहे हैं वो अपनी डिमांड के बारे में बता रहे हैं कि उन्हें ये प्रोडक्ट चाहिए, इस प्राइस का चाहिए, उन्हें कैसा एक्सपेक्टेशन है। हम लोग शॉप पे जाते हैं तो बोलते हैं ना, उस टाइप का प्रोडक्ट नहीं है जिसमें ऐसा हो, या इसमें ऐसा प्रोडक्ट हो, इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट हो, वैसी क्वालिटी हो। तो इसके थ्रू रिटेलर को किसी भी कस्टमर का टेस्ट पता चल जाता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर को चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रिटेलर क्या करता है, गैदर करता है, और ये सब मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को प्रोवाइड करता है। अब होलसेलर एज वेल एज मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे, अपने जो भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है मैन्युफैक्चरर, उसमें वो चेंजेस ला सकता है। वो क्या कर सकता है, थोड़ा सा चेंज करके अपने गुड्स को क्या कर सकता है, चेंज ला सकता है। ऊपर उसके जो भी पैकेजिंग है वो चेंज कर सकता है, गुड्स को मोर अट्रैक्टिव बना सकता है, उसकी क्वालिटी को इन्हांस कर सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ में रिटेलर ऑल्सो हेल्प दी wholesaler and the manufacturer. The retailer have direct contact with the customer, so they know their expectation. Okay, retailer क्या करता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है उसका कस्टमर के साथ, और सो दे नो देयर एक्सपेक्टेशन। इसलिए रिटेलर्स जानते हैं कि कस्टमर्स कैसे काइंड ऑफ प्रोडक्ट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कस्टमर के थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन रिटेलर लेके वो सारी इन्फॉर्मेशन किसको देता है, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को। ओके, so it's all about your today's class. We will continue further in the next class. Okay, thank you.